بزم ساقی سخن کے زیر اہتمام، ایک شام ایک فنکار کے نام۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ڈاکٹر امام قاسم ساقی بزم ساقی سخن ایک شام ایک فنکار کے نام میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہم جہت فنکار بھی ہے اور ماہر تکنیات بھی، جسے اردو ادبی دنیا بڑے ادب و احترام سے پروفیسر عبدالستار ساحر صاحب کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر ستار ساحر صاحب کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج آپ کے یہاں حاضری دے کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور بزم ساقی سخن کے زیر اہتمام آپ نے جو ایک شام ایک فنکار کے نام کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ میرے خیال سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہمارے علاقے میں اس قسم کے پروگرامز کا اہتمام غالباً نہیں کیا گیا تھا، اور میں نے کچھ فنکاروں سے اور اساتذہ سے آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے رہے، مجھے پسند آئے۔ اس طرح سے کچھ اساتذہ، کچھ فنکار جو پردہ خفا میں ہیں یا گمنامی میں ہیں، یا ان کے بارے میں ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ادبی دنیا سے تعلق رکھنے والے زیادہ واقف نہیں ہیں، اچھی واقفیت جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کی یہ کوشش جو ہے قابل تحسین اور قابل ستائش ہے۔ شکریہ سر، آپ تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے ناظرین و سامعین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جائے پیدائش اور جگہ پیدائش کیا ہے؟ کہ میری پیدائش کڑپا میں ہوئی، محلہ خلاف، جو عام طور پر کوٹا گڈا اسٹریٹ، کوٹا گڈا ویدھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آستانے شہمیریہ سے متصل جو ہے ہمارا مکان ہے، اور ان بزرگوں کی دعائیں بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ اور 9 اگست 1957 میں جو ہے میری پیدائش ہوئی تھی، اور میرے والدین کا نام جو ہے والد محترم مرحوم سید قادر صاحب ہیں، اور والد محترمہ مرحومہ محبوب النساء صاحبہ ہیں۔ اور تعلیم کا سلسلہ بھی اگر بتا دیں تو جی شروع سے ہی میرا ذریعہ تعلیم اردو رہا ہے، اور جہاں تک ہائی اسکول کی تعلیم کی بات ہے، شہر کڑپا کا بہت ہی مشہور اسکول، جو اس زمانے میں منسپل مسلم اردو ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آج اس اسکول کا نام جو ہے، آج اس اسکول کو میونسپل کارپوریشن اردو بوائز ہائی اسکول کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور شہر کڑپا کے مؤخر گھرانوں کے اکثر جو ہے بچے جو ہے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ میں بھی جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں، اور اس اسکول سے فارغ ہونے والوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور مختلف شعبہ جات میں انہوں نے اپنی پہچان، اپنی شناخت بنائی۔ اور پی ایچ ڈی کے بعد گورنمنٹ کالج فار مین، اس وقت جو ہے اسی کالج میں انٹر کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، تو انٹر اور بی اے کی تعلیم میں نے گورنمنٹ کالج فار مین کڑپا سے حاصل کی۔ اردو میڈیم میں ہی رہا میرا تعلیم۔ البتہ بی اے میں جس طرح سے لینگویج کے علاوہ ایک اردو کا ایک اختیاری مضمون ہوتا تھا، اسی طرح انگریزی بھی ایک اختیاری مضمون کے طور پر ہم نے جو منتخب کیا تھا، یعنی ہسٹری، اردو اختیاری مضمون اور انگریزی اختیاری مضمون۔ اس کے علاوہ لینگویجز میں پھر انگریزی اور اردو ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے میں نے شعبہ اردو جامعہ وینکٹیشورا کا رخ کیا، اور ایم اے، پھر ایم فل، اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کی تعلیم
میں نے وہاں حاصل کی، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ان دنوں وہاں بہت اچھے معیاری اور مشفق اساتذہ اکرام جو ہے ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے. بالخصوص استاذی پروفیسر سلیمان اطہر جاوید صاحب کی زیر نگرانی مجھے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ داخل کرنے کا جو سنہری موقع ملا، یہ میری آگے کی شخصیت سازی میں اور میری ادبی زندگی کے آغاز اور اس ادبی سفر کے آگے بڑھنے میں ان کی رہنمائی جو ہے میرے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوئی. جی انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ وہیں پر جو ہے پروفیسر بے شک بے شک واقعی بہت کم احباب کو جو ہے یہ موقع نصیب ہوا ہوگا کہ جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ بھی اعلیٰ سطح پر، اسی کالج میں یا اسی جو ہے جامعہ میں ہم کو جو ہے تدریسی خدمات انجام دینے کا موقع ملے. تو ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک طرح سے ایک غیر معمولی کوشش کی، اور اس غیر معمولی کوشش کا نتیجہ ہے کہ 1992 میں میرا جو ہے وہاں بحیثیت لیکچرر تقرر ہوا. بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جہاں پر پروفیسر کے حیثیت سے مقرر ہوئے وہیں 30 سال جو ہے 3 دہائی تک آپ ادبی خدمات انجام دیے. تو کل 27 برس جو ہے میری شعبہ اردو ایس وی یونیورسٹی میں جو ہے سروس رہی ہے. 27 سال میں نے وہاں کام کیا. تقریباً 3 دہائیاں جو ہے آپ اپنی زندگی کی جو ہے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں نکھارنے میں آپ وقف کر چکے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی زیر نگرانی میں جتنے احباب پڑھے ہیں اور آپ کی زیر نگرانی میں جتنے احباب جو ہے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں وہ اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ایک تو آپ کو آپ کے اساتذہ کی دعاؤں کا نتیجہ اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ کی زیر نگرانی میں جتنے لوگ پی ایچ ڈی کیے ہیں وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ پر پہنچ چکے ہیں. بے شک الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اور اساتذہ کی دعائیں، والدین کی دعائیں بھی ساتھ رہی ہیں. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور ہمارا ایک اور سوال ہے کہ آپ بیک وقت شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں اور ناقد بھی ہیں، اس کے علاوہ مضمون نگار بھی ہیں اور جو ہے انشاء پرداز بھی ہیں، کئی جو ہے خاکہ نگار بھی ہیں، کئی خاکے آپ کے بھی شائع ہو چکے ہیں. تو بیک وقت اتنی جو اصناف پر تباہ آزمائی کرنا یا دسترس حاصل کرنا، یہ اس طرف کیسے مائل ہوا؟ آپ کا رجحان کیسے مائل ہوا؟ دیکھیے میں نے ابھی اپنے استاد محترم کا تذکرہ کیا ہے. میرے استاد محترم بھی کئی میدانوں کے شہسوار رہے. اچھا. وہ بنیادی طور پر استاد ہیں. اسی وقت جو ہے بیک وقت وہ محقق و نقاد ہیں اور بہترین جو ہے کالم نگار ہیں، مرخہ نگار ہیں اور جو ہے شاعر بھی رہے ہیں. تو میری پوری ادبی محترم کا ایک ہی واحد انسپریشن جو شخص رہا ہے وہ میرے استاد محترم سلیمان اطہر جاوید صاحب ہیں. ہم لکھنے کی طرف ہماری توجہ مبذول ہوئی تو ان کو دیکھ کر، ان کو لکھتے پڑھتے دیکھ کر جو ہے ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ اب چونکہ ایم اے کے بعد ریسرچ تحقیق کے میدان میں تو کود پڑے، تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا. تو ہم نے محسوس کیا کہ ایک طویل جو ہے عرصے سے اپنی تدریسی خدمات انجام دیتے ہوئے استاد محترم جو ہے کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹی کی سطح پر خاص طور پر جب آپ ریسرچ کرتے ہیں یا آپ کو استاد بن کر وہاں تعلیم دینے کا موقع ملتا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو صرف تدریس تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. بلکہ ادبی دنیا میں شناخت بنانے کے لیے کچھ لکھنا پڑھنا ضروری ہے. یہ پڑھانا تو ایک ہے ہی، وہ فرض ہے جس کو ادا کر رہے ہیں، لیکن انفرادی طور پر ہم جو ہے اردو ادب کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور جو ہے ہماری صلاحیتوں کو ہم کس طرح آزما رہے ہیں، ان کو نکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ انہیں دیکھ کر ہم کافی حد تک سمجھ گئے. اور وہ بعض وقت کہتے تھے کہ پڑھانا کہیں بھی کسی بھی سطح پر یہ
कोई कोई भी ऐसी कर खास बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। जी जी जी। लेकिन उसके अलावा आप इंफरादी तौर पर आपकी जैसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कहते हाँ, हैं जिसे, जी अदबी दुनिया में अपनी शनाख्त के लिए आप क्या कर रहे हैं, जी। अदब को क्या दे रहे हैं आप? अदब को आप क्या दे रहे हैं, जी जी। अदब के सरमाए में इजाफा करने की इजाफा वजह क्या से- करने की कोशिश कम से कम आप कर रहे हैं जी कि नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल तो अब चूंकि सिर्फ वो कहने में और अमल करने में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल। कौल और फेल। बिल्कुल तो उस्ताद मोहतरम न सिर्फ कौल के धनी थे बल्कि वो तो फेल के फेल धनी के थे। धनी थे, माशाअल्लाह। वो खुद अमली तौर पर जो है जो कर रहे थे, जी। जो अमल वो कर रहे थे वही, तो उनकी बात में वो असर भी था, अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौल और फेल दोनों चीजों ये पर। जितनी बातें आपने कही हैं आपके उस्ताद मोहतरम की जो खुसूसियात और उनका अक्स आपके आप में पाया जाता है। बिल्कुल। आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं एक आइडियल मानकर उनको जो कर रहे हैं आप, तो इससे एक अंदाजा होता है कि जो भी उर्दू असातिज़ा इकराम है वो समझते हैं कि नौकरी आने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, हमारा फर्ज अदा हो गया। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उर्दू के जो दर्स और तदरीस के साथ साथ कुछ और कुछ करना है, उर्दू के सरमाए में इजाफा करने की गरज से, उर्दू अदब के सरमाए में इजाफा करने की गरज से, या तो किसी और मैदान में, नस्ल के मैदान में हो या नज्म के मैदान में हो, वो अगर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे या कोई ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे जिससे जो है उर्दू का फरोग हो तो बहुत फायदा रहेगा। तो एक आप हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैंने भी आपके ज़ेरे निगरानी में PhD की है। तो आप जितनी खुसूसियात आपके उस्ताद मोहतरम की आपने बयान की है, उनके साथ भी मैंने कई मुशायरे भी पढ़े हैं मोहतरम सुलेमान अतर जावेद साहब के ज़ेरे निगरानी में, उनकी सदारत में, और उनकी जो खुसूसियात आपने देखा मैं, और आपकी खुसूसियात देखने के बाद मेरे अंदर भी एक जज्बा पैदा हुआ कि जिस तरह आप दर्स व तदरीस के अलावा दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं रिटायर्ड होने के बाद भी। अक्सर लोग ये करते हैं कि रिटायर्ड होने के बाद ये समझते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, मैं वजीफा याब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मस्जिद का किसी कोई कोना पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन आप जो है हर अदबी महफिल में परवानावार चले आते हैं। ये वो अदबी महफिल की कामयाबी की जमानत कहिए इसे, और आपके अंदर जो शौक़ है वो बहुत हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस तरह के जो असातिज़ा हैं वो हमारे लिए एक आइडियल है। तो आप भी कई तलबा और तालिबात के आइडियल हैं, और आप जो आइडियल बता रहे हैं प्रोफेसर सुलेमान अतर जावेद साहब का, वो आखिर बहुत काबिल तहसीन बात है हमारे लिए। मुझे ये एजाज़ भी हासिल रहा है जी। कि मैंने रिटायरमेंट के बाद जो है मेरे उस्ताद मोहतरम के नाम से शहर कड़पा में एक बज़्म कायम की, बज़्म जावेद, माशाअल्लाह। और उसके तहत कई अदबी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जी मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत कम ऐसी बज़्में होंगी जी, बिल्कुल। जो किसी शागिर्द ने अपने उस्ताद मोहतरम के नाम से बिल्कुल। उनकी खिदमत के एतराफ़ में जो है उसको नहीं तशरीफ नहीं, दिया आप हो। बिल्कुल बिल्कुल हक अदा किया है आपने माशाअल्लाह। और फिर जिस पहलू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी मिसाल हम बहुत दूर तक क्यों जाएं, आप ही को ले सकते हैं कि आपने अपनी जो है तदरीसी खिदमत का सिलसिला स्कूल से शुरू किया। जी। आप चाहते तो बस वहीं स्कूल तक महदूद अपने आप को रख सकते थे जी। और वो दर्स तदरीस का काम जो है वो चलता रहता, और दूसरी मसरूफियात आप कुछ रुपया कमाइए, कुछ और ये कीजिए जी, वो जी। कीजिए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जी। और PhD तक जो है आपने तालीम हासिल की, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, और फिर वैसे शायर भी आपने और वैसे नस्र निगार भी आपने। बहुत कम है जो लोग जो है दोनों शेरी व नसरी मैदान में जो है कुछ लिखने पढ़ने के सिलसिले को जारी रखने वाली मिसालें बहुत कम मिलेंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें और आपकी हिदायत। जनाब आपने दकनियात पर बहुत काम किया है, यूँ आपको तो माहिर दकनियात कहते हैं, और माहिर दकनियात जब कहते हैं तो आप ही याद आते हैं। तो दकनियात पर आपने जितना काम किया है बहुत कम लोग किए हैं, और दकनी अदब पर कई किताबें आपकी मंजराम पर आ चुकी हैं। तो दकनी अदब पर काम करने का जो जज्बा, शौक, रुझान कैसे पैदा हुआ? MA के बाद MPhil का इरादा हुआ तो जाहिर बात है कि वो मौजू का इंतखाब बहुत अहम पहलू होता है और बहुत अहम मोड़ होता है वो। तो उस सिलसिले में जब हमारे उस्ताद मोहतरम से तबादले ख्याल हुआ, आमतौर पर कई गाइड्स ऐसे हैं, रहनुमा ऐसे हैं जो अपनी पसंद का मौजू जो है वो कैंडिडेट्स पर थोप देते हैं और मजबूर करते हैं कि वो उन मौजूआत पर वही काम करें। तो जहाँ कई खूबियाँ उस्ताद मोहतरम में थी, उनमें ये भी थी कि वो ये देखते थे
जानने की कोशिश करते थे कि जो रिसर्च करना चाह रहे हैं रिसर्च स्कॉलर, उनकी दिलचस्पी क्या है। अच्छा नस्र में है, शेर में है, जी। नस्र में है तो किस सिंफ में है। अच्छा अच्छा तो मैं शुरू से जो है मेरा रुझान शायरी की तरफ बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा मुशायरों में शिरकत करना, मतलब ये कि सामे की हैसियत से मैंने मुशायरों में बहुत ज्यादा शिरकत की है। हर मुशायरा जो है मैं शेर गड़पा में जो बड़े पैमाने पे होता था, छोटे पैमाने पे होता था, उसमें शिरकत करता था और शेर सुनने का शौक था। शायरी से मेरी तबई मुनासिबत को देखते हुए उस्ताद मोहतरम ने जो है कुछ मौज़ूआत मेरे सामने रखे। उन्होंने कहा कि आपको जो पसंद है मुंतखब कर लें, और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हैदराबाद में खासकर दक्कनी अदब, शेर अदब पर जो है उसके माहिरीन बहुत हैं, बहुत काम किया है वहाँ लोगों ने। अच्छा जैसे सैयदा जाफर साहिबा हैं, अच्छा उसके बाद जो है गुलाम उमर खान प्रोफेसर एक रहे हैं, जी फिर जो है शाहिद सिद्दीकी अबू जैसे एक साहब थे, और फिर मोहम्मद अली असर साहब थे। जी। ये काफ़ी मशहूर नाम थे दक्कनी अदब के हवाले से। जी लेकिन खित्ते रायलसीमा में जहाँ से बहुत हर खासतौर पर कर्नूल और कर्नूल से बहुत ज़्यादा तलबा और तालिबात एमए उर्दू करने के लिए इस यूनिवर्सिटी जाते थे। अच्छा तो इनमें से मुझसे पहले जितने भी काम हुए हैं वो वही उर्दू अदब की मशहूर शख्सियात पर किसी ने किया, किसी ने जो है इलाकाई अदब पर किया। दक्कनी अदब की तरफ किसी की तवज्जो मबज़ूल नहीं। अच्छा 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 जी तो मुझे भी इस बात का डॉक्टर साहब ने जब एहसास दिलाया तो मुझे लगा कि दक्कनी मौजू पर काम करना चाहिए। और उन्होंने सोचा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह चूँकि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है, इसलिए उसकी कुछ गज़लें जो आसान गज़लें हैं, जो मशहूर गज़लें हैं, पियाबाद प्याला पिया जाएगा, तो ये हम पढ़ चुके थे। तो हमने सोचा कि उनकी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तानी तहजीब बहुत ज़्यादा है, जी दक्कनी तहजीब ज़्यादा है। जी। तो तखसीस हो, जी आम मौजू ना हो, एक मखसूस पहलू पर जो है मुनफरिद अंदाज में आपने की। कोशिश हाँ, की। जी तो इस तरह से दक्कनी पर एमफिल का मकाला मैंने पेश किया। अच्छा फिर पीएचडी का मौका मिला मुझे, तो डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया कि क्योंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर आपने पहले काम कर लिया है, जी उसी की तौसी अगर कर ली जाए तो आपको आसानी होगी, और अनफिल में जो आपने मेहनत की है वो मवाद भी आपके काम आएगा। जी तो हमने सोचा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह दबिस्तानी गोलकुंडा से ताल्लुक रखने वाला शायर है, शायर है, तो क्यों ना पूरा दबिस्तानी गोलकुंडा को ले लिया जाए। अच्छा और दबिस्तानी गोलकुंडा में काफी तादाद में शोरा मौजूद हैं, उनकी शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर की निशानदेही की जाए। माशा तो इस तरह से मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर दबिस्तानी गोलकुंडा, और डॉक्टर साहब का ये तरीका रहा है कि उसमें जितनी वसअत आप पैदा कर सकते हैं मुताले के पेश नज़र, जी कम से कम मुताला आपका ऐसा हो। तो हम मोहम्मद कुली दबिस्तान गोलकुंडा से लेकर हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी अनासिर को उर्दू शायरी तक ले आए। माशा तो इस तरह से वो सिलसिला जारी रहा, और उन्हीं दिनों में एक आध मजमून लिखने का रिसर्च करते हुए मौका मिला। अच्छा उसी मौजू पर, दक्कनी मौजू पर, और वो सब्र से पूनम ऐसे जो मशहूर उस जमाने में निकलते थे जी अदबी रिसाले, उसमें एक आध मजमून शाया हो। पहला मजमून जब शाया होता है तो गोया आपको हर किसी को जो है दुनिया मिल गई है, हर किसी के लिए। इस तरह से डॉक्टर साहब के एहसास दिलाने पर मेरे अंदर जो है वो रुझान दक्कनी मौज़ूआत पर काम करने का, दक्कनी अदब पर, शेर अदब पर काम करने का जारी हुआ। और वो सिलसिला जैसा कि आप खुद महसूस किया, मेरी जितनी भी किताबें हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक आध मजमून जरूर जो है आपको मिल जाएगा जिसका ताल्लुक दक्कनी शेर अदब से। दक्कनी अदब के कई शोरा से आपके मरासिम रहे हैं, कि चंद शोरा के नाम अगर बता दें जो खालिस दक्कनी गज़लें लिखते हों, ऐसे शोरा के नाम अगर बता दें तो। पुराने ज़माने में या खदीम, अब दक्कनी क्या है, खदीम दक्कनी एक है जिस पर मैंने काम किया जी। उसके बाद शायरी का जो मामला है वो दक्कनी से उर्दू तक उसका सफ़र तय हो जाने के बाद जो दक्कनी शायरी, जिस दक्कनी शायरी की हम बात करते हैं जी। वो जो अवाम में ज़बान बोली जाती है वो दक्कनी है, जिसको हम आज या एक ज़माने से जदीद दक्कनी कहते हैं। जी।
تو اس دکنی کے حوالے سے کئی شاعر ہمارے پاس پہلے بھی رہے ہیں. سلیمان خطیب صاحب ہیں, سرور ڈنڈا ہیں, گلی نلگونڈے بھی ہے, علی صاحب میاں ہیں, اور پھر اسی طرح اب وہ حیات نہیں رہے, لیکن اس کے بعد کے شاعروں میں آپ دیکھیں گے تو ہمارے اپنے علاقے شہر کرنول کے مشہور صدیق قیسی خمن علی صاحب ہیں, جن کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اور پھر ادھر آدونی میں جو ہے ہمارے معین نظامی صاحب رہے ہیں, جن کے شعری مجموعہ آبلے کے نام سے شائع ہوا تھا. اس کے بعد اب آج بھی ہم دیکھتے ہیں مشاعروں میں خاص طور پر پاپولر میرٹھی ہیں, ٹپیکل جگتیالی ہیں, اقبال شانہ ہیں. تو یہ لوگ حیدرآباد میں بھی اور ممبئی کے شاعر, حالانکہ اتنی دکنی نہیں تھی لیکن پھر بھی دکنی ہی شاعر ان کو خامخواہ, محمد غوث خامخواہ ممبئی کے شاعر ہیں. تو یہ سب بہت اچھے شاعر ہیں اور بہت دکنی ہونے کے باوجود بہت اچھی معیاری طنز و مزاح. الطاف حسین شاداب بے دھڑک, یہ بھی بہت مشہور شاعر ہے. اچھا, یہ دکنی کی جو چاشنی ہے کیا صرف طنز و مزاح تک محدود ہے یا کوئی اور اس کی خاصیت ہے؟ یہ وہ زبان جو عوام بولتے ہیں, عوامی جو زبان ہے, وہ زبان چونکہ اردو معیاری زبان سے, فصیح بلیغ زبان سے بالکل آسان الگ ہے, آسان ہے. تو اس میں وہ الفاظ کی جو ترتیب ہوتی ہے, زبان کا جو استعمال ہوتا ہے, اسی میں ایک مزاح کا پہلو پیدا ہوتا ہے. تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے شعراء نے ہمارے کیا کیا ہے, کئی ایسے مسائل ہیں, کئی ایسے پہلو ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے. تو اصلاح کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے, طنز و مزاح کو ساتھ لے کر آپ جو ہے اگر چلیں گے تو اصلاح کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے. عوام تک ہماری جو کوتاہیاں, ناہمواریاں سماج کی ہیں, وہ عوام کے ذہنوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے. پہنچنے کے لیے دکنی زبان کا استعمال بہترین زبان, زبان سے ایک القاع محدود ہو جاتا, لوگ مخصوص ہو جاتے. لیکن یہ دکنی زبان, اس میں طنز و مزاح کے ذریعے آپ اصلاح کی کوشش کریں گے تو اس کا رینج جو ہے وہ زیادہ ہوگا. یہی اس کی چاشنی ہے کہ جب عوام جڑتی ہے کہاں پر مشاعرے میں, تو ان کی زبان سے اگر ہماری شاعری میل کھاتی ہے تو وہ عوام خوش ہو جاتی ہے کہ بھئی ہماری زبان بولنے لگے ہیں. تو یہ دکنی کی خاصیت ہے کہ بھئی عوام کی زبان ہے, عوام جو جس لہجے سے بولتے ہیں اس لہجے سے شاعر اگر بولنے لگ جائے تو عوام اسے پسند کرتی ہے. جتنے شعراء کا نام آپ نے لیا, طنز و مزاح کے شعراء کا نام ہو یا دکنی غزلیں لکھنے والوں کا نام ہو, تو آج جو دور چل رہا ہے, خصوصی طور پر آپ ضلع کڑپے سے تعلق کرتے ہیں, ضلع کڑپے میں ایسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جو طنز و مزاح کا شاعر ہو. میں جہاں تک میرا صحیح فرمایا, کیونکہ اس کو جو ہے جتنے بھی شعراء ہیں وہ ادب کو برقرار رکھنے کے لیے, معیار کو برقرار رکھنے کے لیے جو دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلوی کی جو طرز ہے اس طرز کو برقرار رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو آج کل کا دور جو ہے دکنی شعراء کے دور کا نہیں ہے, بالکل کم لوگ ہیں. تو ان دکنی غزلوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ یہ ہم کچھ باقاعدہ سوچ سمجھ کر اس کا انتظام ہم نہیں کر سکتے. میں جب انٹرمیڈیٹ میں تھا اس وقت ہمارے فزکس کے ایک استاد تھے, مقدس قادری صاحب, بہت ہی زبردست بڑے عالم و فاضل اردو لیکچرر درویش قادری صاحب کے فرزند, دوسرے فرزند. تو ان کے اندر جو ہے یہ مزاحیہ شاعری کا جو ہے شوق تھا, لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کی طرف توجہ نہیں دی. کالج میں کبھی کبھی کوئی اردو کا جلسہ ہو جاتا, مشاعرہ منعقد کیا جاتا تھا, ہر سال ایک اردو الگ سے اردو انجمن کے تحت ایک اردو کا جلسہ منایا جاتا تھا, اور اس میں جو ہے باہر سے بھی شاعروں کو بلایا جاتا تھا. تو ایسے موقعوں پر جو شعراء ہوتے تھے مقامی, ان کے ساتھ وہ ہمارے استاد محترم جو ہے وہ اپنی مزاحیہ شاعری کے کچھ نمونے یا تضمین کی شکل میں اس طرح سے پیش کرتے تھے. لیکن وہ موضوع کا جو ٹیچنگ کا تھا, فزکس ہونے کی وجہ سے, سنجیدہ موضوع ہونے کی وجہ سے
انہوں نے بہت زیادہ جو طنز ہے میں شاعری کے اپنے سلسلے کو، شعر کہنے کے سلسلے کو انہوں نے برقرار جاری نہیں رکھا. کالج کے علاوہ جی تو کالج سے قطع نظر عام مشاعروں میں شرکت نہیں کرتے تھے. تو اب بھی معاملہ ایسا ہے کہ کوشش جی تو ہو رہی ہے. جی. میں نے خود کوشش کی ہے. اچھا میری 1-2 غزلیں ہیں، ایک آدھ نظمیں ہیں، لیکن مجھے خود جو ہے حوصلہ افزائی نہیں ہوئی میری. یہی بات ہے کہ دکنی غزلیں کہنے والوں کی حوصلہ افزائی ضلع کر کے خصوصی طور پر نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ جو جتنی گہرائی کے ساتھ شعر کہتا ہے اس کی اتنی پذیرائی ہوتی ہے. طنز و مزاح کا شعر کہنے والا ہو یا دکنی ادب کے تعلق سے شعر کہنے والا ہو تو اس کی اتنی پذیرائی نہیں ہوتی. تو یہی معاملہ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ جو ہے دکنی ادب کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو جنوبی ہند ہے دکنی ادب سے پہچانا جاتا ہے، تو دکنی ادب کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ لکھنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے. میرا ایک شعر ہے وہ دکنی کی. جناب میں چاہتا ہوں کہ پوری غزل آپ سنائیں. پوری غزل تو مجھے یاد نہیں ہے. اچھا. وہ تھا کہ اپنا کھاتوں اپنی بولتوں، جی اپنا کھاتوں اپنی بولتوں، دکنی ہوں میں دکنیچ بولتوں. واہ واہ سبحان دکنی ہوں میں دکنی بولتا، لیڈر ہوں میں سچ نہیں بولتا. اچھا جی. لیڈر ہوں میں سچ نہیں بولتا. جی. دارو پیتوں پانی بولتا. واہ واہ واہ. دارو پیتوں پانی بولتا. ہمارے مشہور سپر اسٹار کو بھی لے لیا کہ سلمان خان کی باڑی کو میں. اچھا. سلمان خان کی باڑی کو میں جی آنی جانی فانی بولتا. واہ 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 کیا طنز ہے ماشاءاللہ. دیکھیے یہ جو چاشنی ہے شاعری میں، اب ہر کسی کے لب پر جو مسکراہٹ پیدا کرتی ہے، جو آسان الفاظ میں جو طنزیہ بھی ہو اور ایک سبق آموز بھی ہو، تو کتنی چاشنی ہے اسی. میں نے بات سنجیدہ کالج کے فنکشنز میں، مشاعروں میں بھی 1-2 غزلیں سنانے کا جہاں موقع ملا، شروعات اس سے کی. اچھا. لیکن وہاں بھی پذیرائی نہیں ہوئی. اور سامعین میں بیٹھے لوگ تھوڑا سا مذاق کرنے لگے. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے محسوس کر لیا اور انہوں نے، میں وہ سنا کر ختم کرنا والا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سنجیدہ غزل کے 2-3 شعر سنے بول کے. تو میں نے وہاں سنایا ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کے مذاق کو ٹھپ کرنے کے لیے میں نے وہ شعر سنائے تھے کہ پھول جیسے نکھر گئے ہوتے، پھول جیسے نکھر گئے ہوتے، خوشبو بن کر بکھر گئے ہوتے. سبحان اللہ. پھول جیسے نکھر گئے ہوتے، خوشبو بن کر بکھر گئے ہوتے. جھوٹ کہنا ضروری تھا ورنہ، اچھا جھوٹ کہنا ضروری تھا ورنہ کتنے چہرے اتر گئے ہوتے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قلی قطب شاہ کے تعلق سے آپ نے کہا، قلی قطب شاہ کی جو زبان ہے، جو دکنی زبان ہے، وہ دکنی زبان اور آج کی جو دکنی زبان ہے اس میں کافی فرق پایا جاتا ہے. اس کی کوئی خاص وہ اردو کی کا ابتدائی دور تھا. اچھا. اور اس کو ہم جو ہے قدیم دکنی ہی کہہ کر جو ہے یاد کرتے ہیں. اچھا. تو دکنی ان معنوں میں کوئی الگ زبان نہیں ہے. اس زمانے کی دکنی جو بالکل اردو سے اس کو الگ کہیں. اچھا. شروعات تھی اور اس پر جو ہے مقامی زبانوں کا اور ہماری دراوڑی زبانوں کا اثر بہت زیادہ تھا. فارسی اور عربی کا اثر بہت کم تھا. تو مقامی الفاظ کو لے کر شاعری ہوتی تھی. وہ تو بہت آسان غزل ہے. ان کی ایسے اشعار ہیں جو بہت مشکل دکنی، وہ ہندی اور سنسکرت الفاظ، برج بھاشا کے الفاظ کا استعمال بھی اس نے کیا. تو وہ زبان ترقی کر کے آگے بڑھ گئی تو ولی تک پہنچ سے ریختہ ہوئی، پھر اردو معاملہ سے اردو ہو گئی. اچھا. تو وہ زبان بھی بہت زیادہ عوام میں جو ہے ایک حد تک رائج تھی. وہ زبان وہ زبان وہ استعمال کرتے تھے. لیکن جیسے زبان کی ترقی ہوتی گئی اور اردو تک ہم پہنچے، اس کے بعد ان علاقوں میں جو زبان بولی جانے لگی اس میں فرق آ گیا. تو وہ اس دکنی کو ہم جدید دکنی کے نام سے یاد کرنے لگے. جن میں جو ہے ہمارے سلیمان خطیب اور یہ سب لوگ، کیونکہ وہ قلی قطب شاہ اور اس دور کے دبستان گولکنڈہ کے شاعروں کی جو زبان ہے اس میں کئی الفاظ متروک ہو گئے. اچھا. زمانے کے ساتھ ساتھ یہی پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں متروک ہو گئے تو سمجھنا بھی مشکل ہے. آج ہم کلاس میں پڑھانے کے لیے خود ڈاکٹر صاحب ہمارے کہا کرتے تھے کہ دکنی کو پڑھاتے ہوئے پڑھانے والے کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا. ہاں بالکل. تو اتنا مشکل ہے
जी। दगनी को पढ़ाना समझाना। जी। एक तो बच्चों में दिलचस्पी, बहुत पुरानी जबान है, जी। दिलचस्पी उतनी नहीं होती, और वो जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हैं उनके माने बताते हुए समझाना, जी। मफ़हूम को जो है उन तक पहुंचाना पड़ता है। क्या कोई ऐसी डिक्शनरी है जो लुगत है जो बाकायदा है, दगनी लुगत मौजूद है, जी। जिसमें आप जो है उसका सहारा ले सकते हैं। शायरी की जो जितने भी जी, कदीम दगनी जो शायरी है, मसनवियाँ बहुत ज्यादा लिखी गई हैं। अच्छा। तो उसके बाद गजलें वो जो लिखी गई जी, है, जी। इनमें आपको दिक्कत हो रही है तो वो दगनी लुगत है, माशाअल्लाह। उसका सहारा लेकर उसकी रहनुमाई में आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप जो जितने भी जो है आपकी वे तहक़ीक़ी मक़ाले हों या तहक़ीक़ी किताबें हों, मैंने मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़े हैं आपके, उस पर गौर करने पर पता चला कि आपका जो तनक़ीदी ज़ाविया है वो एतदाल है, यानी तनक़ीद कम है, तहक़ीक़ ज़्यादा है। तो इसकी कोई ख़ास वजह, क्योंकि तनक़ीद अक्सर ये होता है कि भाई उसकी बुराइयाँ भी पेश करते हैं और अच्छाई भी पेश करते हैं, फनी बारीकियों पर भी गहराई में उतर कर उसकी खुसूसियात बयान करते हैं। तो आपकी तनक़ीद में एतदाल पसंदी मैंने देखा है और तासुराती तनक़ीद ज़्यादा है, तो इसकी कोई ख़ास वजह क्या है? तासुराती तनक़ीद ही आपका यहाँ भी मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश की। जी। डॉक्टर साहब भी मौखिक और नक़ाद रहे हैं, जी। बड़े सगीर के काफ़ी मशहूर नक़ाद हैं, जी। जिसका एतराफ़ ज्ञान चंद जैसे बड़े जो है किया है कि दक्कन में जो है मौदी तबस्सुम साहब और सुलमा साहब भी हैं जो मेयारी नक़ाद कहे जा सकते हैं। तो उनके पास भी एतदाल होता था, किसी ख़ास दबिस्तान से वाबस्तगी डॉक्टर साहब की नहीं थी, और उसको उन्होंने कड़ी तनक़ीद करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उनका जो अंदाज होता था वो ज़्यादा जो है तनक़ीद से ज़्यादा तबसीराती हम कह सकते हैं। जी जी। जैसा कि आपने कहा तासुराती ज़्यादा, वो मैंने भी वही कोशिश की कि कड़ी तनक़ीद या किसी मजमून को पढ़ने के बाद, किताब को पढ़ने के बाद मेरे जो तासुरात हैं, मैं जो असर कबूल करता हूँ, उसको जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँ, जिससे खुद मुसन्निफ की या मकाला निगार की, मजमून निगार की दिल शिकनी ना हो। कहीं तरीका ये रहा है कि आखिर में कहीं ये जुमले में, ये आखिरी पैराग्राफ में कंक्लूजन से पहले मैं हल्का सा इशारा जो है उसमें जो और बेहतर हो सकता है वो मजमून या किताब में, और किताब और बेहतर शक्ल में हमारे सामने आ सकती है, उसकी तरफ मैं इशारा करता हूं। अच्छा, ये रहा है मेरा तरीका। ये तासुराती तनक़ीदी दबिस्तान की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, थोड़ा सा कह सकते हैं। तस्जियाती तनक़ीदी दबिस्तान बाकायदा शऊरी तौर पर किसी भी दबिस्तान से मुतासिर होकर तनक़ीद करने की मैंने कोशिश नहीं। अच्छा, तो आपके तहरीर में वो खुद शामिल हो जाती है? बस वो गैर शऊरी तौर पर, जी, क्योंकि सोच हमारी ये थी, मारूज़ी अंदाज इख्तियार करते थे, जी जी, तो उसकी बुनियाद पर वही हमारी रहनुमाई ऐसी करता था कि वो दबिस्तान तासुराती तनक़ीद के करीब जो है हम थोड़ा सा पहुंच जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, एक और सवाल है, आपका एक शेरी मजमुआ आईने के नाम से मंजर पर आ चुका है, वो नसरी किताबें कई आ चुके हैं और शेरी मजमुआ एक आ चुका है, शुरू से आप शेर कहते रहे हैं। आज का जो दौर है शेर व शायरी का हो या शोरा का मिजाज, शोरा के मिजाज में तब्दीलियाँ जो आई हैं, उसके ताल्लुक से आपका नजरिया क्या है कि आज के दौर की शायरी का नजरिया क्या है? तो ये आज के दौर में आप भी खुद महसूस कर रहे हैं कि शुरू से ही जिस तरह से तमाम असनाफ में गज़ल जो है बहुत मकबूल रही है, आज भी हमको ज़्यादा गज़ल व शोरा ही मिलते हैं जी, और गज़ल ने जो सफ़र तय किया है उसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके पेश नज़र ही शोरा जो है कोशिश करते हैं कि हम शेर कहें, वासरी हिस्सियत उसमें हो, जो तनाजुर आलमी तनाजुर में भी जो है शेर कहने की कोशिश करते हैं, आफाकियत उसमें लाने की कोशिश करते हैं। अपने अपने जो जहानत है, तख़य्युल की परवाज़ है, और जो हालात के हाजरा का ऊपर असर है, खुद उनकी अपनी ज़िंदगी के जो हालात रहे हैं, तजुर्बात मुशाहिदात रहे हैं, उसकी रोशनी में
ہر شاعر جو ہے شاعری کرنے لگا ہے، لیکن کبھی کبھی جدیدیت کے نام پر بہت زیادہ جو ہے شاعری جو ہے ایسی تخلیق ہو رہی ہے جس کو ہم جدیدیت کے اصل مفہوم سے مناسبت رکھنے والی شاعری ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں جی یہ چیز جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اور پھر زبان کا استعمال ہے. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہم جو ادب تخلیق کرتے ہیں تو پورا ادب ایک خاص طبقے کے لیے ہم تخلیق نہیں کرتے. جی ہم یہ لکیر جو ہے کھینچ کر ہم یہ نہیں بتا سکتے یا اس لکیر کے اندر جو رہیں گے ان کے لیے ہے کہ میرا نثر پر آیا شعری میری شعری تخلیق، ایسا نہیں کہہ سکتے. پوری شاعری جو ہے شروع سے ہی اور اردو زبان کے زندہ رہنے میں حکومتوں سے زیادہ، بادشاہوں سے زیادہ جو ہے عوام کا عمل دخل رہا ہے. عوام کی دلچسپی، ان کی پسندیدگی اور ان کا جو ہے اس زبان کو اپنانا یہ بہت اہم رہا ہے. اور جب تک زبانیں کوئی بھی زبان کیوں ہے زندہ رہتی ہے، اس سفر طے کرتی رہتی ہے تبدیلیوں کے ساتھ، تو عوام سے جب تک اس کا تعلق ہے وہ زندہ رہے گی اور عام زیادہ رہے گی. تو اب شاعری ہم جو کر رہے ہیں اس میں ایسے غیر مانوس الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ عام انسان، عام آدمی، اور اس کی رسائی مفہوم تک ہو رہی ہے. اس میں جو غیر مانوس الفاظ ہیں، عربیت ہے، فارسیت ہے، یہ اس میں مانع ہو رہی ہے، اس میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. تو آپ مشاعرے میں جا کے آپ شعر پڑھتے ہیں تو کہ مشاعروں میں آنے والے سامعین پورے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. مشاعروں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کتابی صورت میں پھر بھی آپ کی کتاب، میری کتاب وہی لوگ لیں گے، وہی لوگ پڑھیں گے جو ذرا تعلیمی یافتہ ہیں یا جو ادبی شستہ ادبی ذوق رکھتے ہیں. لیکن مشاعرے میں تو ہر عام آدمی آئے گا. وہ تفریح کا سامان ہے، مشاعروں میں ہے، مشاعرے وہ ایک ذریعہ ہے اس لیے بھی آئے گا، اور اس کے ذوق کی تسکین کے لیے بھی آئے گا. کئی وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اسباب کے تحت وہ آئے گا. کسی بھی شاعر پر ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے. نہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مشاعرے کی شاعری نہیں ہے، کتابت کی شاعری ہے. تو اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ مشاعرے کی شاعری کیا ہے، کتابت کی شاعری کیا ہے؟ یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشارے اور کنایے زیادہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کتابت کی شاعری ہے، پڑھنے والی شاعری ہے، یہ آنے والا دور اس کی قدر کرے گا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی شاعری نہیں ہے، رات گئی بات گئی والی شاعری نہیں ہے. تو اس پر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، وہ مشاعرے کی اور جو ہے کتاب کی شاعری یہ بہت زیادہ جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں. اچھا، ادب برائے زندگی نظریے کے ساتھ، ادب برائے ادب آپ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. ادب برائے زندگی بھی آپ کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس حد تک شاعری کو رکھا جائے تو کوئی جو ہے مسئلہ جو ہے پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ ایسا کہیں تو غالب سے بڑا شاعر غزل کا آج تک پیدا نہیں ہوا. بالکل پیدا نہیں ہوا. آپ اقبال کا ہم نام لیتے ہیں، اقبال کی شاعری کی آفاقیت کے باوجود اقبال کی شاعری میں ایک واضح مقصد رہا. ادب برائے زندگی کے نظریے کے متحمل ان کی شاعری کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن غالب کی شاعری ادب برائے زندگی، حالانکہ کئی مضامین فلسفہ زندگی کا ایسے فلسفے جو اس سے پہلے غزل میں اردو شاعری میں آپ کو ملیں گے ہی نہیں. ایسے مسائل پر، ایسی جو ہے پہلوؤں پر، ایسے عنوانات موضوعات پر غالب نے قلم اٹھایا ہے، شعر کہے ہیں. لیکن پھر بھی باقاعدہ ایک طے شدہ مقصد کے تحت جو ہے غالب نے شاعری نہیں کی. اس لیے بھی غالب جو ہے ایک فنکار ہونے کی وجہ سے، تخلیق کار کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بغیر مقصد کے جو شاعری کرتا ہے وہ بہت بڑا فنکار ہے. میں یہ بات مانتا ہوں کہ اقبال اتنے بڑے شاعر ہیں، اقبال کے بعد میر کے بعد غالب آ گئے، غالب کے بعد اقبال آ گئے، لیکن اقبال کے بعد اور کوئی نہیں. یہ ہونے کے باوجود خود غالب کی شاعری کو آپ لے لیجئے. غالب کو اپنے فارسی پر بہت گھمنڈ تھا، غرور تھا. بہت مشکل گویا مشکل ہوگا نہ گویا مشکل ان کا جو مصرع ہے یہ تھا. لیکن آپ
तारीख पढ़ेंगे, गालिब की शायरी की मकबूलियत के असबाब आप आम ढूंढ रही जबान में, है, जी। तो आम जबान में दिल सभी नाज़ा जबान तुझे में जब बहुत। उन्होंने शायरी शुरू की, जी, जी। और ये उनके दोस्त फजले हक खैराबादी के मशवरे पर जी। मशहूर है कि उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि ये क्या कर रहे हैं आप, जी। अवाम तो आपकी शायरी को समझते ही नहीं है, आप किसके लिए शायरी कर रहे हैं, अच्छा। कब तक मखसूस लोगों के लिए, जी। दरबारी लोगों के लिए शायरी हो सकती है। जी। शायरी तो ऐसी नहीं है, प्योर फनकार, प्योर तख्लीक़कार, खालिस तख्लीक़कार का ये शेवा, ये तरीका नहीं है। जी। तो गालिब ने जितनी शोहरत मकबूलियत उनकी उर्दू अदब में आज भी है, वो उनके सारे सलीस आम फहम अशार की मफहूम में गहराई होती थी, जबान मुश्किल नहीं हाँ, होती ये तो ये बात है कि हाँ। मफहूम में गहराई हो, उन्हें अल्फाज के इस पीछे ना अल्फाज पड़े, के क्योंकि अल्लामा इकबाल ने खुद मत कहा उठाइए आप। कि जी, अल्लामा इकबाल ने खुद कहा कि अल्फाज के पंजों में उलझते नहीं दाना, हाँ बिल्कुल। गवास को तलब है कि सदफ से कि गौहर से। तो इस तरह की बातें हैं। इकबाल की शायरी भी जी, कितनी अच्छी, जी। सितारों से आगे जहाँ जहाँ और और भी भी है, हैं, जी। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कितना आसान जबान है, लेकिन मफहूम पर जाइए आप, मफहूम को देखिए, तो मफहूम की गहराई, मफहूम न तो आफरीनी। जमीन के लिए है न आसमां के लिए, जी, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। वाह, वाह। अरे पूरे अल्लाह ताला के इंसान के अशरफुल मखलूक होने का पूरा फलसफा शेर में आ गया अभी। जी। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सारी चीजें पैदा की हैं, जी, उनके लिए इंसान को पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने। न तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए। जी, जमीन आसमान जो है इसलिए मैं इंसान को पैदा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया। जी, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। जी, जी, बिल्कुल। अब ये सारे आप ये सारा सिस्टम यहाँ इतना सलीके से ये चीजें रखी हैं, आप या मैं नहीं रहेंगे तो क्या माना इसका, इसकी कोई माने नहीं। इसकी कोई माने नहीं है। सारी आशाएं थी, मफहूम पूरा वाज़ेह हो गया। पूरा होते हो गया। अशरफुल मखलूक होने को साबित कर दिया सिर्फ दो मिसरों में। जी। ये होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आजकल के जो शुरा, जहाँ तक मैंने कई लोगों से जो है सुना है, और कई लोग कहते भी हैं कि आजकल के शुरा मुताला नहीं करते। मुताला नहीं करने की वजह से इनकी जो शायरी में जो शेरियत है वो मफहूम आफरीनी है, मजमून आफरीनी है, वो नहीं है, मानी आफरीनी नहीं है। तो इस बात से आप कहाँ तक बिल्कुल मुत्तफ़िक़? जी, 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। जी, इसलिए कि जब हमने कुछ कहना तुकबंदी शुरू की थी तो उस्ताद जी। मोहतरम और दूसरे असातिज़ा भी हमसे कहा करते थे कि आपको अगर शेर कहना है तो जी। पहले शायरों का मुताला कीजिए। वाह, जी, शेर कहने वालों के लिए शर्त यह है कि आपको कितने शेर याद हैं उस्ताद शायरों के। माशाअल्लाह। तो आज जो है किताब बेजार माशरा पैदा हमारे पास, बिल्कुल। अदबी दुनिया में भी वही मामला है, तलबा के नुक्ते नज़र से सोचेंगे तो वही है। अब अवाम की तो बात क्या करेंगे। जी, जी, तो जितना मुताला आप करेंगे, वसी रहेगा, जितना जी। मुताला आपका वसी रहेगा, तो वो जो है उससे ये आपकी शायरी में गहराई पैदा हुई। जी, सब चीजें आएंगी उसके बाद आएंगी। जी, जी, तो आपका जहन खुद बन जाएगा। जी। आप हम शायरी में अरूज की बात करते जी, हैं, बिल्कुल। जरूरी करार देते हैं, जी। और बड़े बड़े असातिज़ा तनकीद जब करते हैं, तंज करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर मजाक भी उड़ाते हैं। जी। लेकिन कई लोग ऐसे या कुछ लोग कम से कम ऐसे हैं जिनको अरूज से कोई वास्ता ही नहीं है, जी, बिल्कुल। लेकिन शेर उनका बिल्कुल बाहर में वजन में होता है। जी। ये आके उनके मुताला, उनके जो अदबी ज़ौक़, शुस्ता अदबी ज़ौक़, शेर फहमी जिसको हम कहते हैं, जी। वो है। जी। और शुस्तगी जो उनके ज़ौक़ के अदबी ज़ौक़ के मुताले की वजह से जो पैदा हुआ है, लय और आहंग पैदा हो वो गया। अपने आप जो है उनको उस बहर वजन में शेर अपने आप ढल रहा है। जी, उनको इसकी जरूरत नहीं। बड़े बड़े माहिरीन ने भी यही कहा कि अरूजी मत बनिए, अरूजी बनकर मत रहिए आप। जी, जी, अरूज का इस्तेमाल जहाँ तक जरूरी है, जितना आपको दरकार है बस उतना ही वो रखिए। ज्यादा अगर लेंगे तो बदहज़मी ज्यादा उसको ले लेंगे तो बस अरूजी ही बनकर रह जाएंगे। जी। मानी आफरीनी आएगी ना गहराई मजबूत आएगी, आएगी। ख्याल पूरा वहाँ आपका अटक कर रह जाएगा। अच्छा, जरूरी है। जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बगैर उसके उस इल्म के शायर अच्छा बड़ा शायर बन सकता है या शायरी कर सकता है। जी, जरूरी है इल्म हासिल करना, उस्ताद से रुजू होना, सीखना, ये अच्छी चीजें हैं। जी। लेकिन उसी एक पहलू को लेके पहलू को बैठ जाए। लेकर बैठ जाए, उसको इतनी अहमियत दे के बाकी सारी चीजों को हम नजरअंदाज कर दें, ये ये गलत मुनासिब है। है। तो जी। आज के जनरेशन में जी,
جی आज के जनरेशन में आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं। जी कारोबारी जहनियत होगी, हाँ जी जी जहनियत कारोबारी हो गई। जी आप जिस शौक से पढ़ते थे, हम जिस शौक से पढ़ते थे, हम आज के तलबा में नहीं। आज के तलबा में पैदा करने की जरूरत है। हाँ, ये असातिज़ा की जिम्मेदारी। ये हाँ, यहाँ आकर असातिज़ा भी जिम्मेदार है। अच्छा, असातिज़ा खुद जो है कितने तालीम याफ्ता हैं, असातिज़ा खुद जो है उनका मुताला आज भी जो है उनके मुताले का सिलसिला जारी है कि नहीं है। और कई ऐसे असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर जो है, जिसके सहारे या जिसके तवस्सुत से हमारे असातिज़ा में भी हर सतह पर, खासकर आला तालीम की सतह पर ऐसे असातिज़ा मुकर्रर कर दिए जा चुके हैं जिनका कोई मेयार नहीं। हाँ। उस सतह पर तालीम देने का मेयार नहीं, बस उनको आइडियल मान के बच्चे भी जो है ऐसा करते हैं। बस तो जिस सतह पर आप काम कर रहे हैं उस सतह का मेयार या उससे बढ़कर जो है आपका मेयार होना चाहिए। माशाअल्लाह। या जब आप पेशा इख्तियार करते हैं, माफ कीजिए, जब आप उसमें उस क्या है दुनिया में आ जाते हैं, तदरीस की दुनिया में, तदरीसी जो है सिलसिले के कड़ी बन जाते हैं, तो मुमकिन है कि जब मैं शुरू करूं उस वक्त जो है मेरा मेयार ना हो, मुझ में कमी हो, लेकिन उसके बाद आपकी कोशिश अपने मेयार को आगे बढ़ाने की, उसको तरक्की देने की आपकी कोशिश क्या रही है, वो रहना चाहिए, वो होना चाहिए। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरते जाकर गज़ल कहाँ। ये माता हर किसी के अंदर आना चाहिए कि बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। जी, उस्ताद जिंदगी भर तालिब इल्म रहे, जी माशाअल्लाह, ताला करते रहे। जी, जितना मुताला करेगा, खुद जितना पढ़ेगा उतना अच्छा जाके क्लास में पढ़ाएगा। माशाअल्लाह। मैं जी, अब काफी है, पीएचडी की सनद मिल गई, डीलिट की सनद मिल गई, जी, मैं प्रोफेसर बन गया, वो ये सब सोचने लग गया अगर उस्ताद, तो उसी दिन जो है उस्ताद खत्म हो जी। गया। इसलिए हमारे असातिज़ा में भी बहुत से सिर्फ जो है सनद याफ्ता हैं, तालीम याफ्ता कम है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी, जैसे जैसे जमाना गुजरता जा रहा है, तालीम याफ्ता जो है असातिज़ा की कमी जो है शिद्दत से जो है महसूस की जा रही है। असनाद के बुलंद में तालीम रह गई। बस बस बस। अब वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, उसको उसका एहसास कहाँ से दिलाएंगे कि भाई मार्क्स की अहमियत तो है, सनद की अहमियत है, लेकिन सनद लेकर, मार्क्स लेकर आप जाएंगे बाहर, तो जाने के बाद कोई आपसे गुफ्तगू करेगा, कोई आपसे अदब के किसी पहलू पर जो है तबादले ख्याल करेगा, आप जबान खोलेंगे, लिखेंगे या तकरीर करेंगे, तो उस सनद की इज्जत क्या रहेगी। बिल्कुल अच्छा नजरिया है कि शायर को भी मुताला करना जरूरी है और उस्ताद को भी खुसूसी तौर पर मुताला। अच्छे शेर होने के बावजूद, किसी को दिखाने के बावजूद डरते थे। आज क्या है, नए नए जो शोरा है, कुछ लिख लिए, समझते हैं कि मैंने जो लिखा है वही हरफ आखिर है, और मैं काफी दिनों से शेर कह रहा हूँ या मुशायरे पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छा शायर, बड़ा शायर हो गया हूँ। आपको मुशायरों में शायरों को जमा करने की गरज से मुंतज़मीन जो है हर शायर को बुलाते हैं। जी, हर शायर को बुलाते हैं, मदू करते हैं। मुशायरे के लिए जरूरी है उनका आना, शेर पढ़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ये समझने के मुस्तरद है मेरा कहना, फरमाया हुआ, बल्कि अगर ऐसा समझेंगे तो ये जनरेशन में सोच जो है बिल्कुल सही। जनाब, आप जो है आपके ज़ेर निगरानी में कई लोग जो है पीएचडी हासिल कर चुके हैं, उसकी सनद हासिल कर चुके हैं, और कई तहक़ीक़ी काम भी हुआ है और होता भी रहा है और होता भी है। आजकल का जो दौर है, आजकल के जो तहक़ीक़ करने वाले हैं, उनके अंदर जो सुस्ती और काहिली पैदा हो गई है, ऐसे स्कॉलर्स को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, उनको बहुत से ज़्यादा जो है तादाद में ऐसे स्कॉलर्स हैं हमारे पास जिनको वाकई तहक़ीक़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, एमए कर लेने के बाद शौक़ के तौर पर जो है बेकार रहना पसंद नहीं है, इसलिए चलो रिसर्च करेंगे, एक टाइप है। दूसरा टाइप है स्कॉलरशिप मिल रही है, जी, स्कॉलरशिप के इम्कानात रोशन हैं। अच्छा,
MM में मार्क्स अच्छे हैं, जैसे MNF है, JRF है, जी जी, थोड़ी सी मेहनत करके जो है वो स्कॉलरशिप कामयाब हो गए, स्कॉलरशिप जो है मिल रही है, तो इसलिए जो है रिसर्च करने आ गए। दो और अफसोस की बात यह है कि रिसर्च करने के लिए आए हैं। चलिए मैं ये नहीं कहता कि हमारे कौम जो है माली एतबार से, माशी एतबार से पसमानदा है, बहुत पसमानदा है। उनके मसाइल कई हैं, उनको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो ज़रूरियात भी पूरी हो गई हैं, हो रही हैं, काम करने का भी मौका मिलता है। कम से कम इस बात का एहसास उनको होना चाहिए। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये जो मुझे इआनत मिल रही है ये मेरे लिए गनीमत है, तो मैं अपने काम पर पूरी तवज्जो दूं। जी बिल्कुल, रेगुलर रहूं, जहां मैं रिसर्च कर रहा हूं, पार्ट टाइम है, रेगुलर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को शोबे में जो है लगातार मुसलसल उनकी मौजूदगी ही मुश्किल हो गई है। अच्छा, और दिलचस्पी मौजू से बहुत कम हो गई है, मुताला बहुत कम हो गया है। अच्छा, कहीं फील्ड वर्क के लिए जाना है तो, और मुद्दत जो मुकर्रर की जाती है उस मुद्दत के अंदर काम पूरा करेंगे, मखाला दाखिल करेंगे, ऐसा नहीं सोच रहे हैं जी। स्कॉलरशिप की जो मुद्दत है उसकी सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर काम 3 साल में होने वाला है, हो रहा है, तो भी ना करे जी। 4 साल जो स्कॉलरशिप मिल रही है तो जो है 4 साल पूरे होने के बाद मखाला दाखिल करें जी। तो आप जो काम तहकीक जो है अपने इल्म में इजाफे के लिए कर रहे हैं, या आप तहकीक जो है आपकी स्कॉलरशिप के पेश नजर तहकीक का सिलसिला आपने शुरू किया है, ये चीजें हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, निगरान और सब उनकी कोताही, वो भी खुद उस्ताद के अंदर वो जज्बा हो, वो शौक हो, उसका इल्म, वो इतना तालीमी याफ्ता हो, मौजू पर उसको गिरफ्त हो जी जी, तो वो क्या करेगा, उनको जो है आमादा करेगा, इस बात देगा, सही रहनुमाई करेगा। भाई आपकी स्कॉलरशिप ठीक है, वो जी, आप काम अच्छा कीजिए, वक्त पर कीजिए, दूसरों को भी बाद में मौका मिलेगा। यहाँ पर भी हम लोग जो है निगरान का ही है, वो ज़ौक़ पैदा करे, शौक पैदा करे और उसको एहसास दिलाए कि भाई जो आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं उसका हक अदा करो, हक अदा करो। जी जरूर, ईमानदारी का तकाजा है। जी जी, ईमानदार होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए आपको। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर से जो अल्लाह ताला नवाज रहा है तो अल्लाह के उसके कमी क्या है, ऐसा नहीं है। अल्लाह नवाज रहा है, जरिया एक मुहैया किया है, तो उस जरिए से फायदा उठाते हुए आप उसका हक अदा करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, जी ये असल है। अक्सर स्कॉलरों को मैंने देखा है कि भाई वो क्या करते हैं, जब मुद्दत के खत्म पर 1 साल या 2 साल खत्म क्या करते हैं, या 6 महीने खत्म जो है तहकीकी काम शुरू करते हैं, भाग दौड़ करते हैं और कहते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा और भी एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंड के जो सिलसिला है उसे आगे बढ़ाते ही रहते हैं। तो इन लोगों की जो कोताही है, ये तो बाज़ लोग जो है, ये तो पैसों की मजबूरी एक होती है, बाज़ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता, दिलचस्पी नहीं होती, आखिरी मरहले पर सनद हासिल करने की गरज से मुख्तलिफ किताबें लेके आते हैं, निगरान को परेशान करते हैं कि भाई ये कर दिया हूँ, ये कर दिया हूँ। तो ऐसे स्कॉलर्स भी हैं, और निगरान भी कुछ ऐसे हैं कि आप कुछ मवाद ले जाकर लिखकर आप उनको दे देते हैं और उनसे इस्लाह की ख्वाहिश आप करते हैं, तो उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। हाँ, उनको एक बहुत ही जितनी जल्द हो सके अवलीन फुर्सत में, निगरान का काम यह है कि वो अपनी अवलीन फुर्सत में वो जो मवाद उसको दिया गया है उसकी इस्लाह करे, उसको जो है तलबी इनको रिसर्च स्कॉलर को वापस कर। इससे क्या होगा भाई, ये एक चैप्टर पूरा हो गया, एक बात पूरा हो गया, एक कड़ी जो है पूरी हो गई, तो आप दूसरी कड़ी पर तवज्जो दीजिए और तीसरी कड़ी पर तवज्जो दीजिए। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि 5-6 आपके अबवाब हैं, चैप्टर्स हैं, उसमें एक बहुत अहम होता जिसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है आपके मौजू से होता है। वो कहते थे कि वो चैप्टर आखिर में लिखना। अब आप देखिए, बारीकी देखिए, आखिर में क्यों लिखना भाई, ये तो अहम चैप्टर है, हम अहम काम जो है सबसे पहले करना चाहेंगे, सबसे पहले उससे फारिग हो जाना चाहेंगे हम।
शादी में निकाह हो रहा है, खाना हो रहा है, तो अहमियत किसकी है? निकाह की है ना, बाद में खाने की है। ये और बात है कि बाद जगह खाना पहले शुरू है, लेकिन अच्छी मिसाल है तरतीब जो है, तरीका यही है। जी तो यहाँ भी ऐसा ही है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा करते थे? जी इसलिए कि आप दूसरे जो सपोर्टिंग चैप्टर्स हैं, जी। अबवाब हैं, जी उनको लिखेंगे। लिखना आपको परफेक्ट नहीं है, आप निगरान की इस्लाह होगी तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मश्क हो जाएगी, जी। आपका हाथ साफ हो जाएगा। जी। असल मौजू पर जब आप लिखने बैठेंगे तो बहुत सी चीजें आपके इल्म में होगी, आपकी रहनुमाई हो गई होगी। माशाअल्लाह। और जब फाइनल आप लिखेंगे, असल चैप्टर आप लिखेंगे, तो उसमें जितना दम होना चाहिए, वो जितना जानदार होना चाहिए, वो जितना बेहतरीन होना चाहिए। जी। अगर कोई सिर्फ वो एक चैप्टर पे पढ़कर जो है अपनी रिपोर्ट देना चाहे, अपनी जी। राय देना चाहे, तो दे सकता है। माशाअल्लाह। ये होता था। वो ट्रेनिंग देना है पहले कि मैं किस तरह से ये लिखे। ये सारी चीजें अहम निकात हैं, जी जिनके बारे में खुद इसका टीचर निगरान को मालूम है। निगरान को जानकारी बहुत- होनी चाहिए, मैं मोबाइल- प्रैक्टिकली उसको आजमाना चाहिए। जी, मुबालिगा रही ना हो तो मैं कह दूं कि कई स्कॉलर से मैंने सुना है कि अगर हमारे निगरान वो प्रोफेसर सत्तार साहब होते तो बहुत अच्छा होता। मैंने पूछा कि क्यों? वो कहते कि भाई जब भी कोई जो है स्कॉलर उनके पास जाता है, कुछ पेश करता है, तो फौरन उसकी इस्लाह करके एक मुद्दत तक, यानी एक हफ्ते या महीने की मुद्दत तक जो है उसे वापस कर देते हैं। तो कई ऐसे निगरान हैं जो जिनको इस्लाह के लिए दी जाती है किताब या तरफीस दी जाती है, तो कई साल तक रख लेते हैं अपने आप और कहते हैं कि मैं मसरूफ हूँ। अब उनको ये शेवा होता है कि ये बात कहना उनके लिए बहुत ऐसे फख्र होता है कि मैं मसरूफ हूँ। इस तरह से कहकर जो है अपने आप को जो है बड़ा मान करके चलने की कोशिश। बिल्कुल अहम जो है, दुखते रग पर हाथ रखा है जी। आपने, फौरन दे दें तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। जी वो अपनी मसरूफियत को जाहिर करना चाहते जी। हैं। आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको ये भी बता दूं, जी दूसरे निगरान कारों के तहत काम करने वालों जी का जी असल जो इस्लाह का काम है जी। वो मैंने किया है, अरे वाह। उनके तहत जो है मखाना पेश किया गया है। माशाअल्लाह। ऐसे भी कुछ हैं, जी। मैं नाम नहीं लूंगा, जी, जी। ना तो कैंडिडेट का नाम लूंगा, ना ही जो है निगरान जी, का जी। नाम लूंगा, बल्कि आप उनसे अलग से पूछेंगे तो वो बखुशी आपको बताएंगे भी जी। कि फला जैसे शख्स से मैंने सरदार इस्लाह है या आप हैं जी। साहब, अगर वो रहनुमाई ना करते तो मेरा काम ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये अब ये आप अदीमुल फुर्सती का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वाकई आप नहीं वो क्या कहते- पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द प्रोफेशन आपका। जी जी बिल्कुल। जब आप कैंडिडेट को लिए हैं जी। तो आप क्या घर का मामला है क्या? आप कहें कि मैं फुर्सत नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे निकालना पड़ता। जी बिल्कुल। निकालना पड़ता। इसी का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी है, जिम्मेदारी का जी, एहसास बिल्कुल, है बिल्कुल, जिम्मेदारी और है। वफादारी का नाम है। जी। डॉक्टर साहब बोलते थे वो लिखे क्या मियाँ, वो मजमून लिखना सार, डॉक्टर साहब फुर्सत नहीं, डॉक्टर साहब मौजूद तय करके रखा हूँ, लिखना चाहता हूँ। बोले तो ये ऐसा नहीं होता मियाँ, जी फुर्सत निकालनी पड़ती, जी फुर्सत नहीं रोज की आदत उसको बनानी पड़ती। जी आप कभी मुझे मूड आया मैं कभी वो लिखता हूँ, कभी नहीं लिखता, मेरे पास वक्त नहीं है, यानी वक्त निकालने से निकलता है जी और लिखना पढ़ने का सिलसिला जारी रहता है। जी। ये ऐसा नहीं है कि आज गए तो फिर शादी नहीं हुई तो हनीमून को जाकर आए, या फिर जो है वो फुर्सत मिली तो एक साल में एक बार लिख देंगे, तफरी कर लेंगे, जी। सैर कर लेंगे। जी। लिखना पढ़ना ऐसा नहीं होता। जी, जी, ये मुसलसल। वजह है कि हम कुछ ना कुछ जी जी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते मज़ामीन हैं। लिखिए, शायरी कीजिए, मजमून लिखिए, जी। कुछ ना कुछ अपने दिमाग को मसरूफ रखें, अपने आप को मसरूफ वसूल रखें। रखें। पढ़ने निगरान का लिखने काम भी वही है। जी आप अपने- दिए तो कुछ दिन हो सकते हैं, आप जी। फुर्सत ना हो, जी आप वाकई मसरूफ हो, जी आपका जहनी नहीं, उसकी एक हद है। एक हद है जी आप नहीं कर साले साल यही कहते रहेंगे भाई मुझे मैं मसरूफ हूँ, मैं नहीं देख सका, तो ये बिल्कुल जो है और घुमाते हैं जी गैर जरूरी, ये आप ऐसा नहीं लिखे, ये आप वैसा नहीं लिखे, जी वो पढ़े क्या, ये पढ़े क्या तहकीकी मकाला है या कोई सही आसमानी सहीफा है? जी 100% आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे कोई मकाला परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल खामी तो रहती है बिल्कुल। मुद्दत के एतबार से, कैंडिडेट की काबिलियत सलाहियत के एतबार से, आपके अपनी लियाकत के एतबार से, डिग्री अवार्ड करने की जितना मेयारी मुस्तनद हो सकता है, उसे ख्याल करना। बहुत से फैक्टर्स को, बहुत से चीजों को सामने रखकर उसके मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करना कोशिश कीजिए। आप जरूर मेयारी नहीं, बहुत मुस्तनद- अच्छा मशवरा दिया आपने स्कॉलर्स को भी और जो
حقیقت بیان کی آپ نے. یہ بیان کرنے کے لیے دل جگر چاہیے. بعض لوگ جو ہے بیان نہیں کرتے کیونکہ اگر میں کہوں تو میں جو ہے برا ہو جاؤں گا. تو نہیں, آپ نے جو بالکل جو ہے دل کھول کر کہہ دیا کہ اس طرح کی جو خامیاں ہیں, اسکالرس میں بھی خامیاں ہیں, نگران میں بھی جو خامیاں ہیں, ان دونوں کو اپنے خامیوں کو جو ہے دور کرنا کئی چاہیے. اسکالرس ایسے ہیں دن رات محنت کر کے جیسا بولتے تھے جی اتنے کافی بہت کچھ لکھ کر لاتے تھے, کاٹنے کے بعد اصلاح کرنے کے بعد پھر لکھ کر لاتے تھے, جی ہم کو خوشی ہوتی تھی. جی اور کچھ ریسرچ اسکالرس ایسے ہیں جو تجارتی انداز میں ہمارے ادبی دنیا میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ روپیہ پیسہ خرچ کر کے کسی کے پاس جائیے, ان سے مدد لیجئے, مخالہ جو ہے وہ انسٹنٹ کافی کی طرح تیار ملے گا آپ کو, اور لا کر داخل کر دیجیے. یہی معاملہ چل رہا ہے. یہ معاملہ بھی چلا ہے, پورے نہیں, جی کچھ ہے, کچھ ہے, ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. جی پیسہ دو ہمارے علم میں ہے. جی 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 جی. اور کچھ گائیڈس کو بھی معلوم ہے, اور اس کو یہ بھی سمجھ چاہیے, ان کو پیسہ چاہیے, وہ خود اس کو بڑھاوا بھی انہوں نے دیا ہے. اچھا اچھا, فلاں شخص سے بس جائیے وہ لکھ کے دے گا, بس ختم, اور لے جا کر دیجیے. وہ یہ کرتے ہیں جس طرح جو ہے میڈیکل فیلڈ بزنس ہو گیا, اسی طرح ایجوکیشن فیلڈ بھی جو بزنس. آپ ایک پیراگراف میں صرف ایک لفظ صحیح لکھیے, پورا پیراگراف غلط لکھیے, لیکن آپ لکھیے. جی نگران کا کام ہے کہ وہ ایک لفظ کی تعریف کرے, باقی ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کرے, ہمت افزائی کرے, تب جا کر جو ہے اسے لکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. 2 الفاظ صحیح لکھے گا, ایک سطر صحیح لکھے گا, ہوتے ہوتے ایک پیراگراف کا پورا مقالہ صحیح لکھے گا. بالکل بالکل, یہ بالکل بہترین طریقہ ہے. جو ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک لفظ لکھیے, تو پھر 2 لفظ لکھیے, ایک سطر ہو جائے گا. پھر لکھتے لکھتے آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ اپنے جو ہے خیالات جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور سوال ہے کہ جو ہمارے آج کل کے جو سیمینار اور مشاعرے چل رہے ہیں, اس کی نوعیت الگ ہو چکی ہے, تو اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح کی جو نوعیت ہے؟ کیونکہ سیمیناروں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ من تیرا حاجی بگو یا تو میرا حاجی بگو, اس طرح کا معاملہ, تو مجھے بلا میں تجھے بلاؤں گا, یہ معاملہ چل رہا ہے. مشاعروں میں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ میں فلاں مشاعرے میں یہ شخص بلائیں گے تو وہ مشاعرے میں یہ آئے گا, اس کے مشاعرے میں وہ جائے گا, یہی معاملہ چل رہا ہے. تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ شاید میں خود وہی مصرع کہتا جو آپ نے کہا ہے, من تیرا حاجی بگو تو میرا حاجی بگو. تو واقعی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے سیمیناروں کا جو سسٹم ہے, ہمارے سیمیناروں, اب کیا ہے, کچھ ادارے یا این سی پی او ایسے مالی تعاون دے رہے ہیں, تو اس نقطۂ نظر سے سوچا جائے, دیکھا جائے تو ایک سہولت جو ہے ہم کو مل رہی ہے سیمینار کرنے کی. لیکن سیمیناروں میں بہت سے سیمینار جو ہے وہ کیا ہے, رسمی ہو کر رہ گئے ہیں, اور یہی اس میں قربا پروری زیادہ ہو گئی ہے. اچھا, دوست احباب کو, جان پہچان کے لوگوں کو انہوں نے ہم کو بلایا ہے, ہم ان کو بلائیں, ایک حلقہ تیار کر لیں, ایک حلقہ بنا لیا ہے, ایک گروپیزم ہمارے پاس بہت سارے ادبی جو ہے معاملات میں کیا ہو گیا ہے, مسلکی اور خاندانی ہو کر رہ گئی ہے. بہت سی انجمنیں, بہت سی سوچ ہماری ایسی ہو کر رہ گئی ہے. تو مشاعروں کا خیر اس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں اردو کی ترقی کے اسباب جو ہے تھوڑے سے پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. لیکن ان میں بھی جو گروپیزم آ گیا ہے, یہ بہت زیادہ جو ہے اس سے بچنے کی ناقابل برداشت ہے. اس سے جتنا ہو سکے ہم کو بچنا, اس سے دور رہنا, اور ان ساری چیزوں کے دخل اندازی سے معیاری لوگوں کو نظر انداز کیا جائے. جو معیاری لوگ ہیں, جو مستور فنکار ہیں, ان کو جو ہے اسٹیج تک نہیں لایا جا سکتا. سیمیناروں کا معاملہ بھی ہے. سیمیناروں میں بھی آپ جس موضوع پر سیمینار منعقد کر رہے ہیں, اس موضوع کا حق ادا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے علاقے میں چلیے بہت دور دراز کے یونیورسٹیوں کے یا اور دور مقامات پر ہیں, ان لوگوں کو بلانے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, پیسہ اور دوسرے انتظامات میں. ہمارے علاقے میں اس کے ساتھ انصاف کرنے والے کم ہیں, ان کو بلائیے,
जी उनसे जो है इस्तेफादा कीजिए। और ये बुरी चीज क्या है, जिसको रोकना है, जिसको खत्म करना है, जी इधर से उधर से फरमाइशें भी शुरू हो जाती है। हाँ रजिस्ट्रेशन फीस का मामला भी बात जगह है, जी बिल्कुल। तो वो रजिस्ट्रेशन की फीस अदा करने के लिए 500, 1000 या जो भी मुकर्रर करते हैं या खुद ऑफर देते हैं, Yes. उनको सर्टिफिकेट चाहिए। ये असली फनकार कबूल नहीं करता कि भाई मैं लिखूं भी हाँ। और फीस भी भरूं। हाँ, वो ये नहीं करेगा जी। वो मैंने तो कभी कोई ऐसा सेमिनार अटेंड ही नहीं किया जी। जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस मुझे अदा करनी हो। अच्छा तो लेकिन अब क्या हो गया है, आप यहाँ HOD में करें, कश्मीर से आपको फोन आएगा, अच्छा साहब मैं शरीक होना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन फीस बताइए। जी या फिर जो है मैं रजिस्ट्रेशन फीस भर देता हूँ, आप पढ़ा नहीं सकते तो मैं मकाला भेज सनद देता दे हूँ, दीजिए। या फिर जो है मुझे सनद दे दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए उसमें, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। जी ये मामला चल रहा है। इसे खत्म करना। हाँ, इसको खत्म करना है। और जो पाबंदी वक्त की लगाई जा रही है, भाई आपने कहा आपको मैंने आपसे कहा कि सेमिनार है, मकाला लिखिए। आपने मकाला लिखा, आपने जो मकाला लिखा उस मकाले को पढ़ने के लिए आपको 15 से 20 मिनट दरकार है। उसके बाद उस पर कुछ गुफ्तगू हो सकती है, आपकी भी इस्लाह हो सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है। आप मेहनत करके मकाला लिख कर लाए, और मैं आपके साथ साथ मैंने क्या किया, ये फरमाइशों को पूरा मैंने जमा कर लिया। जी ये मैंने दोस्त साहब को जमा कर लिया, जी। उन्होंने बुलाया, इन्होंने बुलाया बोल के उसको क्या हमें ओवर जो है उसमें ओवरलोड कर दिया मैं। अब ओवरलोड होने की वजह से आपको पूरा मकाला पढ़ने का मौका कहाँ मिलेगा? सिर्फ कहते हैं नहीं, मैंने भी कई 2 मिनट सेमिनारों पढ़ी में है, जो है 3 मिनट पढ़ी है, सिर्फ निचोड़ भेजी है, मिनटों को जो है मुखर्रर कर दिया था, इतने मिनट में आप अपना ऐसा पढ़ेंगे। और राय क्या देंगे आप पे, मकाले पे राय क्या देंगे? जी ये क्या है, ये बिल्कुल और उस पर जो है सवालात भी नहीं उठाए जा सकते। सवाल और जवाब जरूरी है, जरूर मकाले पर गुफ्तगू अहम है। गुफ्तगू है, तबादले ख्याल है। जी कम लोगों को बुलाइए, अच्छा वक्त दीजिए, जी। बड़े बड़े तजुर्बाकार जितने असातिज़ा मौजू पर कमांड रखते हैं, माहिरीन हैं, उनको सदारत की जिम्मेदारी दीजिए। हाँ ये बात। और आखिर में कुछ राय जाहिर करने के लिए कहिए आपको। जी। ये तरीका अगर इख्तियार करेंगे तो सेमिनारों से कुछ उर्दू का फरोग होगा, उर्दू का फरोग होगा, और अच्छा जो है ज़ौक़ जो है उभरेगा, और जो है शुस्तगी आएगी, और मेयार भी जो है अच्छा होगा। और ऐसे इस तरह सोच कर जो कई लोग शरीक होते हैं वो मायूस होकर चले जाते हैं, जी उनको मायूसी नहीं होती। जी ये होना चाहिए। मुझे इंटरनेशनल सेमिनार इकबाल पर जब मैंने किया रिटायरमेंट से पहले, जी, तो जी। पहला सेशन में इतना जबरदस्त, इतना डिस्कशन में ऐसा डिस्कशन हुआ इकबाल पे कि मुझे मजबूरन जो है दखल अंदाजी करके दूसरे सेशन को ख्याल में रखते हुए रोकना पड़ा। अच्छा नहीं, इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई। ऐसी होनी चाहिए जी सेमिनार। और मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि मेरे शागिर्दों में या मुझसे ताल्लुक़ रखने वालों में नए जनरेशन में अब भी अगर कुछ ऐसा महसूस करूं तो उनकी रहनुमाई करूं, ये जरूरी है। ये नहीं है कि हर जगह मैं ही जाऊँ, हर जगह मैं ही जाऊं, या ये नहीं है कि जो ज्यादा मियारी नहीं है उसको सर पे बिठा के उसकी रहनुमाई कीजिए, उसको जो है सही बेहतर से राह बेहतर बनाने बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि उसको सर पे बिठाओ, हर जगह बुलाओ, दूसरों को नजरअंदाज करो, जो मियारी है उसकी तारीफ ना करे, जो अच्छा है सलाहियत जिसके पास है उसको जो खुशामदी करता है खुशामदी करता है वो खुशामद उसको ले ले। जी। ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं आज जी। जमाने में। और वो भी एक अपने लिए क्या है भाई से फख्र, माशा जी क्या कहते मेरा शागिर्द वो है, मेरा शागिर्द ऐसा है, मेरा शागिर्द इतने अटेंड करता है, मेरा शागिर्द, वो शागिर्द की काबिलियत क्या है उसका वो मेयार। नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब उस्ताद शागिर्द की बात कही तो 15 साल कबल हैदराबाद में एक मुशायरा अटेंड किया था मैं। रहमान जामी साहब आए थे और उन्हीं के सदारत में मुशायरा चल रहा था, तो उनके शागिर्द गज़ल सुना रहे थे तो कोई दाद नहीं दे रहा था, तो फौरन उठे रहमान जामी साहब, कह रहे कि ये मेरा शागिर्द है, इसको अगर दाद नहीं देंगे तो इसकी तौहीन मेरी तौहीन है, दाद दीजिए। तो उस्ताद को देखकर दाद देने का मौका मिला वहाँ पे कि मैं ताज्जुब ही हुआ कि ऐसे भी उस्ताद हैं जो अपने जो शागिर्दों को ये कहते हैं कि भाई उनके कलाम को देखकर जो है दाद देने के लिए ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि शागिर्द है, ये मेरा शागिर्द है, मैं इसका उस्ताद हूं, इसलिए दाद दे। इसलिए दाद दो। तो
जबरन जो है दाद मांगी जा रही थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो वही बात आपने भी यहाँ पर दोहरा दी कि भाई गफूर साहब के कर्नूल का जो अच्छा उर्दू का मुशायरों का माहौल और ज़ौक़ रिवाज खत्म होने की सबसे बड़ी वजह यही है जी। कि ऐसे ग्रुप्स तैयार हो गए वहाँ पर जी, जी, एक ज़माने में कि उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने, आपके ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले शेर पढ़ रहे हैं तो दाद। मेरे ग्रुप के लोग दाद नहीं देंगे, अच्छा। तो वही उसी ग्रुप के लोग दाद देंगे। नहीं, ऐसे चल रहा है आजकल, हर जगह चल रहा आज है। भी होगा। जी बिल्कुल। मैं तो ये क्या हो जाता है, इससे ये ग्रोहबंदी पैदा हो जाती है। ग्रोहबंदी जाती, कभी दुश्मनी तक पहुंच जाती, अदब का नुकसान है, अदब सियासी अदब हो जाता हो है। जाता जी बिल्कुल। मुशायरे वगैरह सब जो है बंद हो जाता जी। है, सामीन का आना कम हो जाता है। यही वजह है कि आजकल मुशायरों में सामीन की हाँ, तादाद नहीं है। कम हो गई है। इसी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आने वाली नस्ल को भी जो है अच्छा पैगाम दिया। एक सवाल यही था कि आखिर कि आने वाली नई नस्ल को क्या पैगाम देंगे, तो आपके हर जवाब में जो है एक अच्छा पैगाम रहा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त जो है इस बज़्म को, बज़्म साक़िया सुख़न को अपना अदा किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत सी बातें आपके तवज्जुह से, आपके इस चैनल या इंटरव्यू के ज़रिए जो है मेरी जो असल में जो मेरी तड़प है जी। या उर्दू शेर व अदब या नए जनरेशन को जी। लेकर जी। जो तब्दीलियाँ मैंने महसूस की हैं, जिससे कुछ ज़्यादा जो है उर्दू का या शेर व अदब का या ख़ुद जो है जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे असातिज़ा हों, तलबा तालिबात हों, शायर हों, अदीब हों, उनका जो है उतना फ़ायदा नहीं हो सकता था। लेकिन इन चीज़ों पर ज़रा हम संजीदगी से गौर करें तो कहीं और शायद मुझे इसका मौका नहीं मिलता, या मैं कहीं और रहता तो लोग जो है शायद बुरा मान जाते कि किसी को हद पे मलामत या निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये एक इंटरव्यू है जिसमें मैं अपने तासुरात को जो है खुलकर आपके सामने, लोगों के सामने रखने का मुझे मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा सिलसिला जो है शुरू किया है, और मेरी नेक तमन्नाएं कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहे और जो है शानदार जो है पैमाने पर और बाहर के कोई मेहमान वगैरह अच्छी अदबी शख्सियत जब आएंगे तो उनसे भी जो है आप इस तरह के इंटरव्यूज़ करें, ताकि जिससे हमारे उर्दू को, ज़बान को, शेर व अदब को इनसे जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।